Okay, once again, welcome to the channel. And in this video, I am back with another part of this chapter. First chapter is going on, that is a triumph of surgery. We have explained till this paragraph. Okay, all the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Here we go. All the while, Mrs. Humphrey hovered anxiously in the background. All at once, suddenly Mrs. Pumphrey came anxiously in the background to what? चलिए देखते हैं. All the while, suddenly Mrs. Pumphrey hovered anxiously. Okay. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously. अचानक बड़ी चिंतित होकर वो बैकग्राउंड में आती हैं. Rising a dozen times or ringing a dozen times a day for the latest bulletins. And she was rising, ringing, not rising, a dozen times. Means she was frequently calling to know what is the condition of my dog, Tricky. Means she wants to know dozen of times a day about Tricky. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. Mr. Harriet, he was dodging some questions about whether कि क्या मौसम के अकॉर्डिंग उसकी cushion. Yeah, Palak Tiwari, your attendance has been counted. क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली, क्या उसकी जो क्वेश्चंस थी, जो तकिया थी, वो रेगुलर बेसिस पे टर्न की जाती थी. आर हिज करेक्ट कोट. ठीक है. once again I would like to repeat this paragraph. What happened? Suddenly Mrs. Pumphrey Howard means came anxiously in the background, and she was ringing a dozen of times in a day to know the latest bulletin. It means about the condition of her dog. I, the narrator, Mr. Harriet, dodged means asked some questions about the weather, climate. His questions were being turned regularly. Were they turning regularly the question? Or his correct coat was born according to the weather? Or they were, helping the dog to wear the कोट अकॉर्डिंग टू द वेदर और क्लाइमेट चेंजिंग. क्या मौसम के हिसाब से सीजनल कोट उसको पहनाई जाती थी. ये सारा क्वेश्चन. Okay. Now Mr. Harriet told Mrs. Pumphrey that the dog is out of danger and he is convalescing, means getting improved rapidly in his condition. Means उसके हालत में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है. ठीक है. स्वास्थ्य लाभ. The word convalescing seems to. Okay. I hope now no congestion would be there in the network. The word convalescing, swasthya lab, improvement in someone's illness, seemed to do something to Mrs. Pumphrey. It means Mrs. Pumphrey was feeling comfortable and more pleasure by knowing the condition, improved condition of her dog. She started to bring around fresh eggs. Now, when she knew that the condition of my dog is improving nowadays gradually, she became very happy and started to bring around fresh eggs. ताजे ताजे अंडे भेजना उन्होंने शुरू कर दिया. 2 dozen at a time, 2 दर्जन के करीब एक बार में. फिर उसने मिसेस पंफ्रे ने फिर से जहर देना शुरू कर दिया है. अब 12 अंडे
का एक डोजन होता है, देर आर 12 पीसेस इन अ डोजन, सो इट इज 2 डोजन मीन्स 24 एग्स एट अ टाइम। मीन्स एक बार में 24 अंडे जो कुत्ता खाएगा, हम लोग दो चार खा लेते हैं तो इतनी गर्मी होती है। अब एक बार में 24 अंडे, व्हाट हैपेंस, she started bringing 2 dozen at a time to build up Tricky's strength। ऐसा इसलिए because he could cover in his illness, okay, out of his illness. For a happy period my partner and I had 2 eggs each for breakfast. Now it was an amazing moment for the doctor and his partner that they began to eat all those eggs in their breakfast, okay। वो धीरे धीरे अपने नाश्ते में ही वो अंडे खाने लगे। आई मीन दे डिड नॉट गिव इट टू द ट्रिकी, वो कुत्ते को नहीं दे रहे थे अंडे खाने के लिए, ठीक है, डॉक्टर खुद ही उस अंडे को खाने लगे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, हैरानी तो तब हुई जब उस कुत्ते के लिए वाइन्स की बोतल, ठीक है, जो बॉटल्स होती हैं, वाइन मीन्स शराब, ठीक है, उसको शराब आने लगी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, ठीक है। अब जो संभावना थी कि अब मिसेस पम्फ्रे क्या क्या करेंगी, क्या उसको भेजेंगी खाने के लिए, ये बिल्कुल अब सामने आ रहा था, ठीक है। पहले तो अंडे आना शुरू हुआ, फिर उसके बाद वाइन्स आना शुरू हो गया। शराब मीन्स जो कुत्ता वाइन्स पिएगा, अंडे खाएगा, मांस खाएगा, वो भी ओवरडोज, ठीक है। सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द कंडीशन वुड बी, कैसी कंडीशन होगी, क्या हेल्थ होगा उस कुत्ते का, ये हम समझ सकते हैं। बड़ा लाडला और प्यारा सा कुत्ता था मिसेस पम्फ्रे का, ठीक है, बड़ा प्यार दुलार करती हैं और एकदम अपने बच्चे से भी अधिक उस कुत्ते को वो मानती हैं, जानती हैं। एंड शी tries her best to give you know all that what he likes, okay। it was to enrich Tricky's blood। ऐसा इसलिए था because it would be enriching Tricky's blood, थोड़ा सा खून में सुधार होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, और उसका जो लंच था वो बिल्कुल सेरेमोनियल, अ ओकेजन, सॉरी एन ओकेजन, एक समारोह की तरह, विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील, ठीक है। और जो लंच हुआ करता था, आई मीन एट द टाइम ऑफ लंच ही वॉज गिवन 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, ओके, बिफोर, पहले उसको 2 ग्लास, लंच के पहले 2 ग्लास वाइन दिया जाता था। एंड सेवरल ड्यूरिंग मील, एंड यू नो आर 2 ग्लासेस ड्यूरिंग लंच टाइम, लंच के दौरान भी वो वाइन पीता था, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अगले पेज पे चलते हैं। हम्म We could hardly believe it when a brandy came to put a final ace on Tricky's constitution. Okay, now we was hardly surprised, मतलब बहुत ही अजीब लगा तब, when the brandy came, brandy is known as the most costly वाइन, ये बहुत ही महंगी शराब होती है, ब्रांडी, ठीक है। मतलब इतनी महंगी महंगी शराब उस कुत्ते को दिया जाता था, ठीक है। तब जाके ट्रिकीज का कॉन्स्टिट्यूशन का पता चला कि ये कितना मतलब अच्छे तरह से रहता है और इसका कितना अच्छे तरह से केयरिंग होता है, ठीक है। मतलब कुत्ते के संविधान में तो बड़ा मजा है। आई मीन ही वॉज बीइंग गिवन वेरी लग्जरियस एंड स्टैंडर्ड फूड, ओके, बड़ा अच्छे तरीके का खाना पीना उसका था। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात तक, द फाइन स्पिरिट वाज लोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, ठीक है। कुछ रात तक तो वो कुत्ता खाया, इधर उधर रोल करता था, लुढ़कता था, घूमता था अराउंड, इनहेल्ड, सांस लेता था, एंड रिवरेंटली ड्रंक, और थोड़ा थोड़ा पीता भी था।
ठीक है, I mean all that much amount of food that was being given by Mrs. Pumphrey was not given to the dog at all. Okay, we were giving only less amount of food and wine what Mrs. Pumphrey sent for her dog. ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको करके दे रहे थे ये लोग, थोड़ा सा वो खाता था, थोड़ा चलता था. Gradually he was getting improved in his condition. Finally they were days of deep content. बड़े मज़ेदार दिन थे वो. Starting well with extra eggs. बड़े मज़ेदार दिन इसलिए थे because Mr. Harriet and his partner they were getting extra eggs to eat, and morning improved the sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round off the fire with a brandy. मतलब खूब मज़े के दिन थे वो. डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सुबह सुबह अंडे खाने को मिलते थे, उसके बाद जो है लग्जरियसली जो है ब्रांडी, ठीक है, शाम को वाइन पीने को मिलता था, अंडे खाने को मिलते थे. मतलब कुत्ते के बहाने डॉक्टर साहब और उनके पार्टनर दोनों लोग खूब मज़े से जो है लंच और ब्रेकफास्ट एज वेल एज सपर किया करते थे. इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. ओके, इट वॉज अ टेम्पटेशन. टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? ग्रीड, लालच. ठीक है, अब ये लालच इनकी बढ़ रही थी डॉक्टर साहब की कि ट्रिक्यू को लंबे समय के लिए गेस्ट के तौर पे रखा जाए, परमानेंटली. ठीक है, ऐसा इसलिए मे बी द क्वेश्चन अराइजेस, why do the doctor want to keep Tricky for a permanent guest? ठीक है, एज परमानेंट गेस्ट ट्रिकी को डॉक्टर साहब क्यों रखना चाहते थे? इसलिए because he was getting all that what he likes, like eggs early in the morning, extra eggs, wine during the day, and brandy at evening. Okay, so it was a standard and luxurious meal, and desire to have that much of food. बड़े मजे के दिन थे, इसलिए वो परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे कि अगर वो परमानेंटली यहीं रहेगा तो मिसेस पम्फ्रे जो ऐसे ही भेजते रहेंगी. ओके, शी वुड बी sending all that much, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering. लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे की जो हालत थी वो बड़ी नाजुक थी. She was suffering, and after 4 nights, लगभग 4 दिन हो गए थे, felt compelled to phone and tell her. मैं अपने आप को मजबूर समझ रहा था. compelled का मतलब होता है hopeless. ठीक है, I could not help myself to make a call. मैं नहीं रोक सका अपने आप को और उनको बताया that little dog had recovered, was awaiting collection. Now जो डॉग है वो धीरे धीरे अब रिकवर कर रहा है. ठीक है, उसकी हालत में काफ़ी सुधार आ रहा है. आगे क्या होता है देखते हैं. Within minutes, कुछ ही क्षण में, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. हॉस्पिटल के बाहर लगभग 30 feet of gleaming black, 30 फीट का चमकता हुआ ब्लैक मेटल ड्रीव अप. ठीक है, आउटसाइड द सर्जरी. नाउ द कैफर ओपन द डोर. मेरा जो चालक था, कैफर का मतलब होता है चालक. ओपन द डोर, दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट अ फिगर ऑफ मिसेस पम्फेरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. शी वॉज लॉस्ट इन द इंटीरियर. शी वॉज miserable. She was so worried about her dog. वो इधर उधर भटक रही थी. She was wandering here and there. She was roaming her dog. वो अपने कुत्ते को देखना चाहती थी. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. उनके जो हाथ थे वो मजबूती से, she was joining her hands. बड़ी फर्मली तरीके से उन्होंने अपने हाथ को ऐसे जोड़ा हुआ था. उनके जो होठ थे वो कांप रहे थे. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is it really better? प्लीज़ टेल मी ट्रूली. आप प्लीज़ मुझे वास्तविकता बताइए, क्या वो वास्तव में अच्छा है, पहले से अच्छा है? यस, ही इज़ फाइन. डॉक्टर साहब बताते हैं हाँ, अब वो बहुत अच्छा है. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आपको कार से बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? आई विल गो एंड फेच हिम. मैं जाता, मैं उसको लाता. आप झूठे यहाँ तक इंटीरियर आकर भटक रही हैं, परेशान हो रही हैं. ठीक है, तो ये तो मान लीजिए डॉक्टर साहब की डेडिकेशन है, लेकिन जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो तो काफ़ी परेशान है अपने कुत्ते के लिए, अपने बेटे के लिए कह सकते हैं.
इतना तो एक माँ अपने बच्चे के लिए परेशान होती है जितना वो परेशान है। उसके बाद क्या हुआ, आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होते हुए, आई अराइव्ड इन द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स, a number of many dogs was hurtling round and round the lawn, and their missed ears flapping, tail waving, was the little guy figure of Tricky. And there was a little figure of Tricky around, among them. बहुत सारे कुत्ते उधर टहल रहे थे, अपनी पूछें हिला रहे थे, कोई गुर्रा रहा था, कोई ईयर्स को फड़फड़ा रहा था। आपने देखा होगा कुत्ते जो है अपने ईयर्स को फ्लैप करते हैं, ठीक है, कभी कभी फड़फड़ 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 करते हैं, इस तरह की आवाज़ आती है, और टेल को, अपनी पूंछ को हिलाते हैं। उसी में एक लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, देयर वॉज अ गोल्डन लिटिल फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी छोटा सा गोल्डन मतलब कलर में चमक रहा बैठा हुआ था। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ। ओके, वो जो कुत्ता था वो बिल्कुल सुस्त हो गया था, ठीक है। अब what would be the meaning of this word, let you know, flexible, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो कुत्ता है वो पूरी तरह फ्लेक्सिबल हो गया है। फ्लेक्सिबल का मतलब सुस्त तो हो गया है, लेकिन उसके शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ चुकी है, ठीक है। मीन्स ही वॉज फीलिंग कंफर्टेबल, उसके शरीर का जो फ्लैश है वो धीरे धीरे अब कम हो गया था, मांस कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया था। अब आगे, आई वॉक थ्रू नाउ had muscled animal, and he was keeping up with well the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब वो स्वस्थ हो रहा था धीरे धीरे, उसका जो चेस्ट था, आई मीन ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे लेटा हुआ था, और उसके जो चेस्ट थे, आई मीन जो चेस्ट उसका था वो ग्राउंड पे ऐसा लग रहा था जैसे ब्रश कर रहा है, ब्रश का मतलब रगड़ कर रहा है। आई कैरिड हिम बैक लॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ हाउस, मैं घर के सामने उसको लाया। द द कैफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, मेरा जो चालक था वो दरवाजे को, कार के दरवाजे को अभी भी ओपन रखा था, आई मीन खोले हुए था। एंड वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी अपनी मिस्ट्रीज को देखता है, मीन्स वेन ट्रिकी शाह मिसेस पम्फ्रे, जब वो अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्रे को देखता है तो जाहिर सी बात है, द डॉग वुड बी सो हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, ठीक है। एक कोई भी जानवर अपने मालिक या मालकिन को देखेगा तो खुश होगा। एज अ चाइल्ड becomes happy if he sees his own mother। आगे, मिस्ट्रीज, he took off my arms and a tremendous leap, बहुत ही शानदार तरीके से उसने छलांग लगाया, एंड शेल्ड इनटू मिसेस पम्फेरीज लैप, और वो जाकर मिसेस पम्फेरी के लैप मीन्स गोद में बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टलेड ओफ, वो बेचारी बहुत ही दुखी थी और उन्होंने एक स्टार्टलेस उफ मीन्स आवाज़ करी, ओ मेरा बच्चा, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, और वो कुत्ता उनके ऊपर धीरे धीरे आई मीन खेल रहा है, उनके गोद में चढ़ रहा है, लिकिंग हर फेस, उनके फेस को चाट रहा है, एंड बाकिंग, और भौंक रहा है। During the excitement, I helped the Kaffir to bring out the beds, toys, cushion, coats, and bowls, none of which had used. Okay, everything which which we carried along with the dog at the moment when he was taken to the hospital, we carried all that along with the dog back. ठीक है, वापस फिर जब हम लोग आए तो सारा कुछ लेके आए। Meanwhile, the cafe, the driver of car was carrying down everything that has been used for dog। as the car moved away, जैसे ही कार वहाँ से वापस हुई, मिसेस पम्फेरी leaned out of the window, मिसेस पम्फेरी विंडो से देख रही थी, tears shone, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो होंठ थे वो अभी भी कांप रहे थे। मीन्स ही वाज सो obliged टू द डॉक्टर्स, ही वाज हैप्पीली क्राइंग, वो बड़े खुशी से रो रही थी। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्ला रही थी, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू,
मैं आपका कैसे धन्यवाद दूं, शायद मैं धन्यवाद नहीं दे सकती, बिकॉज वॉट यू डिड फॉर मी इज यू नो अनपेएबल, जिसको कभी पे नहीं किया जा सकता जिसके बदले। एंड दिस इज द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, और ये एक विजय है जो हमने हासिल करी है, आपने हासिल करी है इस सर्जरी को। हालांकि वास्तव में कोई सर्जरी उस कुत्ते की हुई नहीं थी, ठीक है, लेकिन उस कुत्ते में बहुत अच्छा सुधार हो गया। जेम्स हैरियट इसके राइटर हैं। मैं बार बार आपको बताता रहा, द नरेटर इज द राइटर, ओके, एंड द राइटर इज द नरेटर एंड द नरेटर इज द डॉक्टर। ही इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर ऑफ वेटरनरी, ओके, मीन्स पशु चिकित्सक हैं जेम्स हैरियट, और इन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है। और ये जो स्टोरी है ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये रहा स्टोरी। आई होप यू हैव गॉट, आपको समझ में आया होगा। ये ग्लोसरी हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, आप देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या हैं, लेट्स यू नो। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर, अ veterinary surgeon, is? Would you say he is a tactful as well as full of common sense? ये जो नरेटर हैं क्या वो वास्तव में पशु चिकित्सक हैं? आपको ये बताना है कि क्या वो वास्तव में एक पशु चिकित्सक हैं। वुड यू से, क्या आप कहेंगे कि वो टैक्टफुल हैं एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, वो समझदार, ठीक है, होशियार और सिंसियर तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाने के बाद बहुत खुश था? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपको क्या लगता है कि अब होगा? डू यू थिंक दिस इज द रियल लाइफ एपिसोड? क्या आपको लगता है कि ये वास्तविक घटना है? आर मोर फिक्शन, या एक बनावटी फॉकटेल की तरह उपन्यास है? और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या इसमें दोनों बातें हैं, ठीक है। तो ये निर्भर करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे कि आपने क्या समझा है। और कल इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस को आप रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छा नॉलेज हो सके। एंड आई वुड बी आस्किंग द रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चंस टुमारो for your betterment. And the next chapter would be the second chapter of this book, Footprints Without Feet. Okay, at least we have to complete 2 or 3 chapters out of this book. Meanwhile, we would be covering some topics of grammar as well. That's it. Keep learning, and stay home as well as stay safe. Bye.